Sultana Anjum. I read in class 8 from Modern Public School. Today I am going to present my project that is GCB hydraulic. And GCB stands for Joseph Cyril Bomford, and it is based on Pascal law. लोग प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, हमें ये जानना चाहूँगी आपसे, साइंस अपने आप में या फिर आपके जीवन में क्या महत्व रखती है? Science is all around us. It is used in breezes, and we walk, we use science, and many other things we perform are based on sciences. It is also known as hydraulic bridge or moving bridge. It is a bridge that allows seaside traffic from the water bodies. It is many working principles. It is based on the Pascal's laws. Hydraulic motor and hydraulic cylinders are the two important components that give power to the bridge to work with hydraulics. And the bridge was based on the arc. The midpoint of the arc is placed is a pinned connection, and essential there is a three hanged arc. There has many benefits for it. There is no use of computer to control this bridge. This is simple and economical beneficial. I am Prince from Standard 8. I am studying in Modern Noon Public School. I make the project of electrolysis of water. In this project, the water you see is electrolyte. I imaged two electrodes in it. This electrode is anode and this electrode is cathode. I supply electricity through it with the help of a battery. First, wastewater from house come in water treatment plant. It is goes inside it. First, water is sedimented in this solid settle at the bottom. Second is filtered is using charcoal or gravel. In this, we stain out particles like bacteria, chemicals, or viruses. And third one is disinfection, in which we kill off any remaining bacteria. And fresh water comes in the tank where it goes to the house. अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बताती हूँ। भागीरथी रोड है, पुरानी बाजार, टेघरा में ये स्कूल अवस्थित है। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग सुनहरा अवसर देती है। इस स्कूल के बच्चों से ही जानते हैं क्या क्या इस स्कूल में फैसिलिटी। जस्ट स्कूल के आगे ये कैमरा लगाया गया है, बच्चों को सही सलामत बच्चे इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, डांस क्लास, पेंटिंग। हेलो, माय नेम इज़ लक्ष्मी। आई स्टडी इन क्लास 7। मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स है और क्लीन वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे मेरे भाई बहन आ सकते हैं और जा सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन सा पोएम सुनाओगे? मछली जल की पानी है, जीवन उसका पानी। हाथ लगाओ। हमारे स्कूल में लैब की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर क्लास होते हैं और डांसिंग क्लास, सिंगिंग क्लास। हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही हमसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, उस बच्चों से भी बातचीत करेंगे। अभी वर्ड किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सके उसे स्वर वर्ण। व्हाट इज वेदर एंड सीजन? Weather is the day-to-day condition of a place when a particular type of weather remains for a month or two. It's sea. And click Alt plus X, press, and then now you can see dolphin picture. सीजन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मच जाएगी। तिरंगा फहराते हैं 26 जनवरी में, उसमें कितने रंग होते हैं? 3। कौन सा? ऑरेंज, वाइट, हरा। ROS रोज, LOUTUS लोटस। लक्ष्मी, हाउ आर यू? I am fine. I'm also fine. What about you? I am good as well. You know what, girls? Suddenly in this morning, I remember that in 3 months we will complete our final exam. So what's your future plan? Actually, I have dreamed to become a doctor since childhood. I am still on it. Oh, that's great. What's your preparation for that? I am interested. As you know, I am interested. I hope to good result in final. Then everything is dependent on it. And what's about you, Ria? Lakshmi, I'm a bit interested in biology and my full aim is to be a doctor, and that's my dream too. Why is that your dream?
It just because from my childhood I find it interesting and my parents encourage me. I don't want them to be down, so that's why I'll try to do my best. What about you, Srishti? I want to become an engineer. नॉर्मल क्लास और स्मार्ट क्लास में क्या अंतर लगता है? नॉर्मल क्लास और स्मार्ट क्लास में यही अंतर लगता है कि नॉर्मल क्लास में हम जो पढ़ते हैं उसमें समझ आता है, लेकिन जो हम आंखों से देखकर और कानों से सुनकर उसे समझते हैं उसमें ज़्यादा समझ आता है, इसीलिए हमें उसमें स्मार्ट क्लास में देख के समझाया जाता है। मॉडर्न दून पब्लिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि सर लोगों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जा रहा है। दूसरा, उसे शिक्षा जो दिया जा रहा है वो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं है, वो शिक्षा जो है उसको ज्ञान के रूप में मिल रहा है। शिक्षा को वो अपने जीवन से बच्चे बोल नहीं पाते, ना वो हिंदी के रह पाते, ना वो इंग्लिश के रह पाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चों को मैं देखता हूँ कि शुद्ध हिंदी पढ़ना, शुद्ध अंग्रेजी को पढ़ना, ये बच्चों में मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हम जो यहाँ के बच्चों में देखते हैं, मैं क्लैरिटी रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि वो उनको तो ये सबसे पहले बच्चे क्या हो, वो कोई चीज़ पढ़ना जाने, अक्षरों का बोध हो उनको, है ना। वो क्या है, कोरे कागज़ की तरह है बच्चे। अब देखिए, जो कॉपी लिखा हुआ है उस पर क्या फिर से लिख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बच्चे क्या हैं, सादे कागज़ की तरह, जो आप लिखेंगे वो लिखाएगा उस पर, है ना। तो बच्चों में जो किसी को अधिकार नहीं, चाहे कोई विद्यालय हो, मैं किसी का बड़ाई नहीं करता, कोई विद्यालय हो, कोई स्कूल हो, किसी को अधिकार नहीं बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का, है ना। तो बच्चे जो मतलब कोरे कागज़ की तरह हैं, उस पर कुछ अच्छे शब्द लिखे जाए। मैं समझता हूँ कि मॉडर्न दून पब्लिक स्कूल इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर रही है कि बच्चों के कोरे कागज़ पे वो अच्छे शब्द लिख रही है। यहाँ की प्रिंसिपल मैम है उपासना मैम। मैम, आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। मैं उपासना मॉडर्न दून पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हूँ और मैं लगभग लंबे समय से यहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा होती है, शिक्षा व्यवस्था में अपनी योगदान दे रही हूँ और मेरा स्कूल संचालन से संबंधित योगदान रहती है। तो मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि हम अपने काम से जो मैं कर रही हूँ बच्चे के लिए, तो इस समाज को अपना कुछ एक छोटा सा प्रयास है जो इस समाज को चाहिए, वैसा मनुष्य निर्माण आधुनिकता के समय में ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर आवश्यक हो गया है, स्मार्ट क्लास हो गया जिसमें बच्चे को सीखने में काफ़ी सुविधाएं होती है, तो वो हो गई। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी केयर करवाते हैं, जो भी टीचर हैं काफ़ी केयर करते हैं। छोटे बच्चों में स्मॉल क्लास रखते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम रखते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से उसको केयर किया जा सके। नामांकन अभी जारी है जी, अभी नामांकन स्टार्ट हो गया और मेरे यहाँ जो है ना मैम, अभी एक स्टार्ट हुआ है नामांकन, तो एक फैसिलिटी दी जा रही है कि 51 स्टूडेंट तक, जो भी फर्स्ट 51 स्टूडेंट होगा उनके एडमिशन में एक यूनिफॉर्म फ्री दिया जाएगा। जो भी फर्स्ट टाइम आएंगे उनको इसकी बेनिफिट मिलेगी। और नामांकन तो भी देखे हैं जो 50% उसमें एडमिशन में जो है 50% कम लिया जा रहा है, मात्र 50% ही लिया जा रहा है। मेरी ये उद्देश्य है सर, ये जो कम फी में कम से कम, अभी के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको कम से कम फी में अधिक से अधिक सुविधाएं दे, बच्चे को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, उनको पढ़ने से संबंधित जो व्यवस्था अभी इतने कम फी में हम बच्चे को इतनी अच्छी सुविधा देने की कोशिश करें। गुरुवाओं बच्चे के लिए आपके स्कूल में कुछ स्थान? जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो मतलब ऐसी भी होती है कि जब मुझे लगता है कि पेरेंट्स योग्य नहीं है देने में, तो मैं उनको सामने से कॉल करके बुलाती हूँ, बोलती हूँ कि ये काम कीजिए, आप फ़ी जमा नहीं कीजिए, आप बच्चे को ज़रूर भेजिए। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं। सामान्यतः तो स्कूल में फ़ी तो लगते ही हैं, न्यूनतम फ़ी ले रही हूँ, बट जैसे लगता है कि किसी के पेरेंट्स नहीं है या फादर्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत है पढ़ने की और शायद फ़ी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं खुद से कॉल करके उनको बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को भेजिए, पढ़ाई मत रोकिए, फ़ी आप
मत दीजिएगा। कभी कभी ऐसी नौबत ये आती सब बोलते बोलते देखिए आंखों आपके भर आए हैं। क्या लगता है उन बच्चों के बारे में? क्या बहुत लगता है बहुत सोचते हैं? बिल्कुल। और सर आपका एक इंट्रोडक्शन। Myself Nitish and I am a computer teacher. Today I am going to teach a student about some technical course and some technical course like what is MS Word and MS Word's function. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस है। हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर को हम लोग ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं। इस तरीके से आंसर पॉइंट को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या फिर कलर चेंज कर सकते हैं उसका। Good morning, ma'am. Myself Prince from Standard 8. I am studying in Modern Noon Public School. मैम माउस पॉइंटर का साइज़ और कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमको ईज़ ऑफ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। ईज़ ऑफ एक्सेस टैब जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में हमको माउस पॉइंटर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। माउस पॉइंटर ऑप्शन में हमें चेंज पॉइंटर साइज ऑप्शन मिलेगा। इसको हम स्लाइड करके अपने माउस पॉइंटर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सुहानी कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 फ्रॉम मॉडर्न नून पब्लिक स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिबोई UI सिंबल को हम लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये सिबोई UI सिंबल ला लेंगे, और and then increase front style sheet and then code of dolphin 1F 4 to C and click Alt plus X, press, and then now you can see dolphin picture. अब मैम क्या पढ़ा रहे हैं आप इन स्टूडेंट को? जी, साइंस सब्जेक्ट है वेदर एंड सीजन। निशा मैम वेदर और सीजन के बारे में पढ़ा रही थी, तो ये स्टूडेंट हैं। और क्या नाम है बाबू आपका? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी से जानेंगे जो वेदर और सीजन क्या होता है। व्हाट इज वेदर एंड सीजन? Weather is the day-to-day condition of a place when a particular type of weather remains for a month. गुड फील होता है, मतलब एक्सपीरियंस बनता है ना जी। क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं, आपका रीडिंग सुनना चाहेंगे। All the students of the Inspired Public School have assembled on the playground. The annual sports day is being celebrated in the ड्राइंग में कितना सुंदर से पेंटिंग बनाते हैं। अदर जो एक्टिविटीज़ जो होता है उसमें काफ़ी अव्वल रहते हैं, और बहुत ही अच्छा देख सकते हैं प्रेजेंट किए हैं अपने ड्राइंग के माध्यम से। और इस स्कूल के मॉडर्न डून पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर सर और मैम हैं, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने इन बच्चों के अंदर एक अलग कला भरने की, जो एक अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से उन्हें बताते हैं, जो पेंटिंग किस तरीके से अपने आप में एक अलग। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते ने सारे हैं मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन। है रिसेप्शन काउंटर पे अभी हम हैं, और कुछ पेरेंट्स यहाँ आए थे बच्चों को लेकर के। क्या कहना है मैम, कब से यहाँ अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? फरवरी से पढ़ा रहे हैं। बच्चा बहुत अच्छा है। और यहाँ जब बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कैसा लगता है जब घर पे जा कर के प्रेजेंट देते हैं आपके सामने? अच्छा लगता है। डून पब्लिक स्कूल में देख सकते हैं काफ़ी सारे जो बच्चे अलग अलग दूर से आते हैं, उन बच्चों के लिए वैन का काफ़ी सुविधा दिया गया यहाँ।